class 8. How are you? I think everybody is safe at home. So you have got the notice that your school will reopen. So be ready to come to school. Again, the environments which you are missing at home. Okay. So coming back to our studies, we have already finished the 3 chapters, that is operating system, Excel and flowchart and algorithm. All these things I have already completed in your previous videos. I have sent you all the PDFs, and last PDF I have sent you the the third chapter which I have sent you the PDF. So please girls, complete all your works in your fair copy, whatever work has been left, so that when you come to school, then you can show me your work. If it is not checked, maybe if you show me that, I check your copy. So coming back to the chapter, the 4th chapter, programming coding, and in this I will explain you, it is literally related to the previous chapter, that algorithm and flowchart, where I have explained you how you should solve your problem step by steps. Programming means a set of instructions to solve the problem. So here I will tell you more information, more features about how to solve a problem. Okay. So in our day-to-day life, whatever work we do step by step. For example, when we are purchasing anything from a mall, so from purchasing to shopping planning, all these first we plan and then we purchase anything. Yes. शॉपिंग परचेस करने से लेके शॉपिंग तक क्या करेंगे उसके बारे में पूरी प्लानिंग हम पहले करते हैं, उसके बाद ही हम कोई चीज़ खरीदने जाते हैं. उसकी हर चीज़ की क्वालिटी, हर चीज़ के बारे में जानकारी लेने के बाद हम उस चीज़ को खरीदने जाते हैं. So there are some steps like checking the quality of the product. अगर हम कोई चीज़ खरीद रहे हैं तो फर्स्ट उसकी क्वालिटी को चेक करेंगे. क्वालिटी को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल वी आर बाइंग अ वॉशिंग मशीन. इफ वी आर बाइंग अ वॉशिंग मशीन, what type of washing machine we are buying, which company, first we have to see that there are so many companies, and in that I have to choose one company and I have to see that which is the best company for the washing machine. For example, if I see the Whirlpool, okay, I have taken the company Whirlpool from all the other company. I think it is the best, and I have to see that in Whirlpool which is the best washing machine. Like washing machine, there are 2 types, like semi and auto, semi-automatic and fully automatic. And now if we are buying the semi-automatic, and that I have to see that which type of semi-automatic machine is good, which model is good in that. And if we are buying the auto, fully automatic, then in that which model is best. So this is the first point. Next is verifying the price. Now we have to see the price also. In semi-automatic, which model is best and which is the cheapest one. If we want to buy in a budget, we have to see the budget also. And now we want to see that which is the cheapest one. Then we have to see which model is the cheapest one. In the semi-automatic, same in the automatic also, we have to see which is the cheapest one, which will be fulfill our budget. Next, the last step, how much it will be useful to us. Now this thing is very important, that when we are buying anything, first we have to see that it is useful to us or not. Then only we can buy that things. And now washing machine is very important to us. Yeah, so it is very useful to us. So what are the useful things it having, that steps also important, that we will see that what benefits it has. Okay, so all these things we will see in that, and then we will purchase the thing. So all the above short points are like a problem. All these points which I had told you, all these things are a problem, and that problem has some solution. So a person can break this problem into little steps. All these 3 points can be break in points. The first one, check the quality, that also we can break in steps.
आई टोल्ड यू अर्लियर, मैंने बताया कि फर्स्ट स्टेप जो क्वालिटी चेक है, क्वालिटी चेक करने में ही कितने सारे स्टेप आ गए कि कौन, सबसे पहले तो मैंने कंपनी सोचा कि कौन सी कंपनी बेस्ट है। अब कंपनी सोच लिया तो कंपनी में देखेंगे कि अगर हमने वर्लपूल लिया तो वर्लपूल में कौन सा मॉडल सही है, वर्लपूल में हम क्या लेने वाले हैं, वॉशिंग मशीन लेने वाले हैं, वॉशिंग मशीन लेने वाले हैं तो किस टाइप का वॉशिंग मशीन लेने वाले हैं, सेमी ऑटोमेटिक या फुल्ली ऑटोमेटिक। अगर हम सेमी ऑटोमेटिक लेने वाले हैं तो सेमी ऑटोमेटिक में कौन सा मॉडल सबसे अच्छा है, अगर हम ऑटोमेटिक लेने वाले हैं तो उसमें सबसे अच्छा मॉडल कौन सा है। तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट आ गया प्राइस के बारे में। तो अगर हम सेमी ले रहे हैं तो प्राइस उसमें सबसे चीपेस्ट क्या है, और अगर हम ऑटो ले रहे हैं तो उसमें सबसे चीपेस्ट क्या है। तो इसमें भी प्राइस हम देख लिए। अब जो लास्ट पॉइंट है तो यूज़फुल क्या है, तो यूज़फुल क्या क्या हम इससे यूज़ कर सकते हैं। जैसे वो कपड़े बहुत अच्छे से हो जाए, जल्दी धो देता है, टाइम सेव होता है उसमें, हमें हाथ से उसको निचोड़ना नहीं पड़ता है, वो ड्राई अपने आप कर लेता है, बस हमें उसे डालना पड़ता है, ठीक है, सुखाने के लिए डालना पड़ता है, लेकिन वो आधा तो मशीन में ही सुखा देता है। तो इतने सारे बेनिफिट्स हैं। तो ये पॉइंट्स हो गए उसके, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स को हमने कितने अच्छे से तोड़ के बनाया, स्टेप्स में तोड़ दिया, तो वो और आसान हो गया समझने में, ठीक है। तो हर एक चीज़ को हम स्टेप वाइज सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। आसान करने के लिए, प्रॉब्लम को इजी बनाने के लिए हम उसको स्टेप वाइज लिखेंगे तो उसको ज़्यादा समझने में आसानी होगी। सो एज वी से दैट बिहाइंड एवरी प्रॉब्लम देयर इज अ सॉल्यूशन। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें सॉल्यूशन ना हो, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जिसमें सॉल्यूशन ना हो। अगर हम ऐसे ही सोचते रहेंगे कि नहीं इसका कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है तो वो कभी सॉल्यूशन निकल के नहीं आएगा। लेकिन अगर हम इसको एज अ सीरियसली लेंगे, एज अ प्रॉब्लम को सीरियसली लेंगे तो उसका सॉल्यूशन ज़रूर कहीं से निकल के ज़रूर आएगा, अगर हम उसको सीरियसली लेते हैं तो। ईच प्रॉब्लम कैन बी रिजॉल्व बाय फॉलोइंग दीज लिटिल स्टेप्स। ये जो पॉइंट्स आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स हैं। ये 6 पॉइंट्स आपको इस प्रोग्राम को लिखने में बहुत हेल्प करता है, स्टेप वाइज प्रोग्राम को लिखने में बहुत हेल्प करता है। कैसे करता है, लेट्स सी। फर्स्ट पॉइंट है चेक द प्रॉब्लम। जब हम प्रॉब्लम लिखना शुरू करते हैं तो सबसे पहले ये देखते हैं कि प्रॉब्लम कैसा है, किस टाइप का प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम किस टाइप का है, पहले ये से। फिर एनालाइज करते हैं प्रॉब्लम कितने तरीके के होते हैं, तो किस तरह का प्रॉब्लम होगा, लॉजिकल है कि अर्थमेटिकल है। लॉजिकल है तो यस नो में आंसर आएगा, अर्थमेटिकल है तो अर्थमेटिकल ऑपरेशंस के द्वारा सॉल्व किया जाएगा। तो एनालाइज कर लेते हैं। फिर आइडेंटिफाई अ सॉल्यूशन, उसके लिए एक सॉल्यूशन सोचते हैं कि इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। पहले आइडेंटिफाई कर लेंगे कि सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए इसका, इसके लिए भी हम प्लानिंग करते हैं। देन चूज अ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन को चूज करते हैं कि जो हम सॉल्यूशन सोच रहे हैं उसमें से सबसे बेस्ट सॉल्यूशन क्या होगा इसको सॉल्व करने, और इजी होगा ताकि ये प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाए और समझ में भी आ जाए। प्लान टू सॉल्व। अब जब हम उस चीज़ को कर लिए हैं, चूज कर लिए हैं कि सॉल्यूशन हम इस तरह करेंगे, तो अब उसको प्लान करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए कि इस तरह का स्टेप होना चाहिए, तभी ये अच्छे से समझ में आएगा और ये जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। और लास्ट पॉइंट है इम्प्लीमेंटेड। अब इसको यूज करेंगे, मतलब इतने सारे स्टेप्स के बाद जाके हम उस काम को शुरू करते हैं। मतलब पहले हम उसको चेक करते हैं, फिर एनालाइज करते हैं, फिर सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर क्या करेंगे, चूज करेंगे सॉल्यूशन की कौन सा सॉल्यूशन सबसे बेस्ट होगा। तब कौन सा सॉल्यूशन सबसे बेस्ट होगा तब जाके हम उसका सॉल्यूशन करते हैं। एंड देन प्लान अ सॉल्यूशन। अब उसमें से प्लान करते हैं सॉल्यूशन को कि कौन सा सॉल्यूशन कैसे बनेगा, ये जो हम सॉल्यूशन चूज किए हैं उसको हम किस तरह से करेंगे ताकि प्रॉब्लम जल्दी से सॉल्व हो जाए और इजीली हो और सबको समझ में आ जाए। और लास्ट पॉइंट है, अब उसी चीज़ को हम इम्प्लीमेंट करते हैं एक प्रोग्राम को लिखने के लिए। ठीक है, तो हमने
ये देखा कि कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें कितने सारे स्टेप्स की यूज़ होती है। कि पहले हमने 3 पॉइंट्स लिए, चेक द क्वालिटी, सी द प्राइस एंड देन व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दैट। और चेक द क्वालिटी में ही हमने कितने सारे पॉइंट्स लिए, है ना। चेक द क्वालिटीज़ में ही हमने कितने सारे पॉइंट्स ले लिए। और उसके बाद प्राइस, हर चीज़ को परचेज करते हैं तो उसका एक प्राइस होता है, तो उसमें भी हम सोचते हैं कि प्राइस हम हाई वाला लेंगे कि लो वाला लेंगे कि एवरेज वाला लेंगे, ये सब कुछ देखते हैं। एंड देन लास्ट में हम देखते हैं कि अब अगर हम परचेज कर लेते हैं और ये इतने कॉस्ट है इसका, तो अब इसका यूज़ क्या होगा। क्योंकि कोई भी सामान अगर हम खरीदते हैं, अगर हम उसको यूज़ नहीं करते हैं तो वो क्या है, लॉस है उसका। खरीद के हम बेकार ही खरीदे उसको जब हम यूज़ ही नहीं करना है। अगर हम कोई चीज़ परचेज करते हैं और उसका एक अमाउंट देते हैं और वो अमाउंट अगर बहुत अच्छा खासा हुआ, तो अगर हम उसको सही ढंग से यूज़ नहीं करेंगे तो क्या वो वेस्ट नहीं हो गया, वो वेस्ट हो गया। तो कुछ भी खरीदते हैं तो उसको हम क्वालिटी चेक किए, प्राइस चेक किए, लेकिन अगर हम ये नहीं देखेंगे कि उसकी यूज़फुल क्या है, वो हमारे लिए कितना यूज़फुल है, अगर ये चेक नहीं करेंगे तो वो कोई काम का नहीं है। ठीक है, तो हर चीज़ का एक स्टेप होता है, हर चीज़ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेप वाइज ही प्रोसेस चलते हैं, तभी जाके हमें एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलता है। तो बीइंग एवरी प्रॉब्लम देयर इज अ सोल्यूशन, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जिसका एक सोल्यूशन ना हो। So today we stop here. Please go through this video. If you're having any problem, please comment on the comment box. Okay, girls, thank you. Have a nice day.